So now we will discuss the transition curves. So just clear the concepts for the provision of transition curve, that why we are providing the transition curves. So as we have discussed in our previous classes, that we will have the one line of communication, then we have another line of communication, and to make this directional change gradual, we will have to provide a simple circular curve, or we will have to provide a compound curve, या हमारे पास स्पाइरल कर्व्स होंगे, सॉरी रिवर्स कर्व्स होंगे. ठीक है. सो जो डायरेक्शनल चेंज है, एब्रप्ट चेंज है, उसको ग्रेजुअल बनाने के लिए हमने कर्व डिजाइन करने होंगे. सो देखिए यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, दैट इज T1 पॉइंट, और ये जो पॉइंट है दैट इज द एंड ऑफ द कर्व, T2 पॉइंट है हमारे पास. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं. If you are shifting from a straight line into a curve, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें चेंजेस आ जाते हैं. अब देखिए ये जो T1 पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट से पहले रेडियस हमारे पास इनफाइनाइट होता है. इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के बाद हमारे पास रेडियस की कुछ वैल्यू आ जाती है. So it means that we have shifted from infinite radius to some value of radius. Similarly, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं तो उसका कर्वेचर क्या होता है? जीरो. मीन अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं ना, तो वी कैन से दैट इट हैज जीरो कर्वेचर. तो T1 पॉइंट के बाद आपके पास कर्वेचर की सम वैल्यू होगी. So you are shifting from zero curvature to some value of curvature. ठीक है. Similarly, at a straight line, centrifugal acceleration will be zero. And after T1 point, you will get some centrifugal acceleration. ठीक है. So you are moving from zero centrifugal acceleration to some value of centrifugal acceleration. ठीक है. सिमिलरली एक और कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं कि जब आप लोग एक कर्व पे जा रहे होते हैं तो रोड का जो आउटर एज होता है उसको रेस कर देते हैं. ठीक है. मीन अगर सपोज आप इस तरह एक कर्व रोड पे जा रहे हैं ना, तो रोड का जो आउटर एज होता है उसको रेस किया जाता है. We will discuss it in later slides कि इसको क्यों रेस करते हैं, लेकिन that is called the super elevation. तो अगर आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो उसकी सुपर एलिवेशन क्या होती है? जीरो होते हैं. और उसके बाद अगर आप एक कर्वेचर पे शिफ्ट होते हैं, कर्व पे शिफ्ट होते हैं, तो you will have some super elevation. तो it means that you have shifted from zero super elevation into some value of super elevation. ठीक है. Mean whenever you are moving in a straight line, in T1 point, suppose you have shifted into a curvature, into a curve, so it means that you changed from infinite radius to some value of radius, from zero curvature to some value of curvature, from zero acceleration to some value of centrifugal acceleration, from zero super elevation to some value of super elevation. Okay. And similar concept can be applied into the end of the curve. At the end of the curve, you are moving from some value of radius into infinite radius. You are moving from sub curvature into zero curvature. You are moving from some centrifugal acceleration into zero centrifugal acceleration. You are moving from some super elevation into zero super elevation. So again, these are a kind of abrupt changes which you will feel whenever you are moving from a straight into a curve, या from a curve into a straight. ठीक है. अगर आप एक स्ट्रेट से कर्व की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या एक कर्व से स्ट्रेट की तरफ आ रहे हैं,
so you will feel these changes. so again इससे अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है, या समटाइम एक्सीडेंट भी काज हो सकते हैं अगर आप हाई वेलोसिटी पे जा रहे हैं, ठीक है। सो टू मेक दीज चेंजेस मोर ग्रेजुअल, अगर इन चेंजेस को आपने फर्दरली ग्रेजुअल करना है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज यहां पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनके दरमियान आपने अगर एक सर्कुलर कर्व डिजाइन करना है, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम एक ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करते हैं फ्रॉम टेंजेंट टू कर्व एंड फ्रॉम कर्व टू टेंजेंट। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? दैट इज नथिंग जस्ट अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस। मीन हर एक पॉइंट पे इसकी जो रेडियस होती है वो वेरिएबल होते हैं। वो रेडियस क्या होता है? वो ग्रेजुअली चेंज होता है। सो एट दिस द रेडियस विल बी gradually changed from infinite to some value which will be the radius of this circular curve, and similarly at the end of the circular curve जो हम transition curve provide करते तो उसका radius change होगा gradually r से infinite पे, ठीक है। सो ट्रांजिशन करो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, या ट्रांजिशन करो क्या है? दैट इज अ करो ऑफ वेरिएबल रेडियस। सो टेंजेंट और करो के दरमियान, या करो और टेंजेंट के दरमियान अगर आप एक ट्रांजिशन करो प्रोवाइड कर लें, ट्रांजिशन करो का क्या होता है? उसका रेडियस ग्रेजुअली चेंज होता है। सो अगर रेडियस ग्रेजुअली चेंज होता है तो रिमेंबर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है या सुपर एलिवेशन है या कर्वेचर है, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ रेडियस। ये पैरामीटर जो है ये रेडियस के फंक्शंस या रेडियस पे डिपेंड्स होते हैं। तो अगर रेडियस ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी ग्रेजुअली चेंज होगा, कर्वेचर भी ग्रेजुअली चेंज होगा, सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली चेंज होगा, ठीक है। तो टेंजेंट और कर्व के दरमियान हम एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, या कर्व और टेंजेंट के दरमियान एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू मेक द चेंजेस इन दीज पैरामीटर्स मोर ग्रेजुअल, ठीक है। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर स्ट्रेट से आप कर्व की तरफ जा रहे हैं ना, तो एब्रप्टली you will feel some curvature, you will feel some centrifugal acceleration, you will feel some super elevation, you will feel some radius. So again that is a kind of discomfort. तो इसको फर्दरली कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसको फर्दरली ग्रेजुअल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द सर्कुलर करो एंड एट द एंड ऑफ द सर्कुलर करो वी आर डिजाइनिंग द ट्रांजिशन करो to make these parameter या to make these changes more gradual. Okay, so this करो is called the transition करो। और इस करो का क्या होता है? उसका रेडियस वेरिएट होता है, इसका रेडियस जो होता है ये चेंज होता है। अगर एट द स्टार्ट ऑफ द सैंपल करो आप यहां पे एक ट्रांजिशन करो डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट से आर की तरफ डिक्रीज होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे इस पॉइंट से सर्कुलर करो स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उसका रेडियस आर है, और इस पॉइंट पे रेडियस क्या है? इनफाइनाइट है। तो आपके पास रेडियस जो है वो ग्रेजुअली इनफाइनाइट से आर पे डिक्रीज होगा। तो अगर रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो कर्वेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। और इस एंड पे देखें यहां पे रेडियस क्या है? दैट इज द एंड ऑफ द सर्कुलर करो, तो रेडियस आर होगा, और ये जो है यहां से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है तो इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा।
तो मतलब ये है कि रेडियस जो है दैट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। सो अगर रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है आर से इनफाइनाइट पे, तो आपके पास जो कर्वेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ओके, सो टू मेक दीज चेंजेस ग्रेजुअल, और जो ट्रेवल आप कर रहे उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए वी विल हैव टू प्रोवाइड अ ट्रांजिशन करो इन बिटवीन द टेंजेंट एंड करो एंड टेंजेंट, दोनों एंड्स पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एंड आल्सो वी हैव डिस्कस, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि सपोज अगर आप एक कंपाउंड करो डिजाइन कर रहे हैं, तो कंपाउंड करो में क्या होता है, हमारे पास एक सर्कुलर करो होता है, फिर दूसरा सर्कुलर करो है, और ये क्या है, दैट इज द जंक्शन पॉइंट, या ये जो पॉइंट आप कॉमन कर्वेचर है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, यू आर मूविंग फ्रॉम वन रेडियस टू अनदर रेडियस। ठीक है, दो डिफरेंट करोस है ना, तो उनकी रेडियस डिफरेंस है ना। तो ये यहां पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप क्या हो रहे हैं, एक रेडियस से दूसरी पॉइंट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके पास रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं, सो यू विल फील द चेंजेस इन एक्सेलरेशन, यू विल फील द एक्सेलरेशन इन सुपर एलिवेशन, you will change the you will feel the changes in curvature. So again ये एक abrupt change है। तो यहां पे फिर हम क्या करते हैं कि एक सिंपल करो डिजाइन करते हैं, फिर एक ट्रांजिशन करो प्रोवाइड करते हैं, फिर सर्कुलर करो प्रोवाइड करते हैं। तो ये ट्रांजिशन करो क्या होगा, उसका रेडियस ग्रेजुअली चेंज होगा फ्रॉम R1 to R2। So gradually you will shift from one circular curve to another circular curve. So जो abrupt changes हैं या जो discompatibility है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ट्रेवलिंग जो है वो सेफ होगा। So that is the objective, that why we are providing the transition curve. So if you have the one line of communication, another line of communication, so first we are providing the transition curve, then we have our required simple circular curve या any type of curve, then we are providing the transition curve। ठीक है, सो इन में और स्टार्ट में हमारे पास ट्रांजिशन कर्व होता है, बीच में सिंपल कर्व होता है या सर्कुलर कर्व होता है। सो दिस इज कॉल्ड दी देन द कंपोजिट कर्व, इसको फिर कंपोजिट कर्व कहते हैं। ठीक है, सो ऑन रेलवेज एंड हाईवेज इट इज द कॉमन प्रैक्टिस टू इंट्रोड्यूस अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस विच इज कॉल्ड द ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये वेरिंग रेडियस का करो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है बिटवीन द टेंजेंट एंड करो। एंड सिमिलरली यहां पे भी वेरिंग रेडियस का एक करो है बिटवीन द करो एंड टेंजेंट। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन करो। ट्रांजिशन मीन रेडियस उसका चेंज होता है, हर एक पॉइंट पे उसका रेडियस चेंज होगा। दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्पाइरल करो, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ईजमेंट करो। ओके, and it can be also inserted in between the two branches of the compound curve which we have discussed. So a curve of varying radius is called a transition curve. It is also called spiral curve, or it is also called the easement curve. Okay, so अगर रेडियस जो है वो ग्रेजुअली या हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं, तो जो पैरामीटर हमने डिस्कस की, कर्वेचर, एक्सेलरेशन, सुपर एलिवेशन, ठीक है, ये भी ग्रेजुअली आपके पास अचीव होंगे। पर ठीक है, इट इज यूज ऑन बोथ हाईवेज एंड रेलवेज बिटवीन द टेंजेंट एंड कर्व, एंड बिटवीन द कर्व एंड टेंजेंट मीन दोनों एंड पे आप कर सकते हैं ना। फर्स्ट ट्रांजिशन कर्व जो होगा ये टेंजेंट और कर्व के दरमियान होगा, और दूसरा ट्रांजिशन कर्व जो होगा वो कर्व और टेंजेंट के दरमियान होगा। ठीक है, and then the combination of this two transition curve and one circular curve is called the composite curve। ठीक है, so the transition curve is provided
to change the horizontal alignment from straight to circular gradually. ठीक है, मीन हम एक स्ट्रेट लाइन से सर्कल की तरफ जा रहे हैं ना, मीन स्ट्रेट लाइन से एक आर्क की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो अलाइनमेंट चेंज है, अगर इसको ग्रेजुअल बनाने के लिए, इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए, वी विल हैव टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन करो, ठीक है, एंड अ करो ऑफ वेरिएबल रेडियस इज कॉल्ड ट्रांजिशन करो, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन करो का? जी यस सर। अच्छा, now as we have discussed यस सर, क्लियर हो गया। the need of the transition karo, that is the circular curves are limited in road design, ठीक है, बिकॉज अगर एक गाड़ी जो है वो एक रोड पे जा रही है तो उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एग्जर्ट होंगे, ठीक है, या अगर एक गाड़ी जो एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो एक जो है उसका अपना एक वेट होता है विच इज एग्जर्टेड ऑन द रोड, ठीक है, जो रोड के ऊपर एग्जर्ट होता है, ठीक, और अगर आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो वेट जो है that will be perpendicular to the surface of the road. अच्छा, now if you are moving from a straight line into a curve, ठीक है, तो अगर यहां पे एक बॉडी मूव हो रही है कर्व पाथ पे, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एग्जर्ट होगा, which will be acting in opposite direction from the radius, mean, and it will, in the centrifugal force will try to push out the vehicle from the path, ठीक है, मीन अगर एक बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स will act opposite to the radius, ठीक है, and will try to misplace the body, or will try to push out the body from the alignment. तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम क्या करते हैं कि करो का जो आउटर एज होता है उसको हम रेस कर देते हैं, विच इज कॉल्ड द सुपर एलिवेशन, ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से करो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो आपने करो का आउटर एज रेस करना होगा, और स्ट्रेट रोड जो है उसका सुपर एलिवेशन 0 होता है, ठीक है, सो जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस की ना कि यू विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम 0 सुपर एलिवेशन टू सम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, similarly you will have to shift from 0 centrifugal acceleration into some value of centrifugal, ठीक है, and you are moving from 0 curvature to some value of curvature, and you are moving from infinite radius to some value of radius, and similarly at the end of the curve you are moving from some curvature to 0 curvature, you are moving from some super elevation to 0 super elevation, you are moving from some centrifugal acceleration to 0 centrifugal acceleration, you are moving from some radius to infinite radius. So now to make these changes gradual, you will have to provide a transition curve. That is the need, ठीक है, ये इसकी नीड है या ऑब्जेक्टिव है कि हम ट्रांजिशन करो क्यों प्रोवाइड करता है. So the object of introducing a transition curve at each end of the circular curve is to accomplish the gradual transition from tangent to the circular curve, कि gradually आप tangent से gradually आप straight line से circular curve पे चले जाए, and also to obtain a gradual increase in the curvature from 0 to some specific value, कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं ना तो उसका कर्वेचर क्या होता है, 0 होता है, तो अगर स्ट्रेट से आप अगर एक करो पे जा रहे हैं तो करो की सम कर्वेचर है, सो टू obtain the gradual increase in the curvature,
Similarly, to obtain the gradual increase in the super elevation, similarly to obtain the gradual increase in the centrifugal acceleration, you will have to provide a transition curve. Transition curve mean a curve up variable radius. तो अगर रेडियस ग्रेजुअली और हर एक पॉइंट पे स्लोली डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, तो कर्वेचर, सुपर एलिवेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है ये भी ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होंगे. ठीक है, तो मोर कंफर्टेबिलिटी जो है वो अचीव होगा. सो दैट इज द नीड या दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांजिशन करो. ठीक है, देखिए ना, इसको सुपर एलिवेशन कहते हैं. अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं ना, एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, टेंजेंट पे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे जा रहे हैं, तो उसकी दोनों एंड्स जो होते हैं, रोड की विड्थ के दोनों एंड्स जो होते हैं वो लेवल होता है. ठीक है, और इसके बाद अगर आप एक कर्व पे जा रहे हैं ना, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन से कर्व पे जा रहे होते हैं तो बॉडी की ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होगा, एंड दैट फोर्स विल ट्राई टू slip the vehicle in this direction, या इसको मीन अवे फ्रॉम द रेडियस इसको मूव करेगा ना. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट होता है, वेट जो है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एग्जर्ट होगा. तो एक वेट होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, and this is the resultant of both the forces which is acting on the body. तो बॉडी क्या होगा, व्हीकल क्या होगा, स्लिप होगा ना. तो इसको काउंटर अटैक करने के लिए हम क्या करते हैं, रोड का जो आउटर एज होता है इसको हम रेस कर देते हैं. तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाता है. तो गाड़ी जो है फिर वो स्लिप नहीं होती, वो एक्सीडेंट काज नहीं होगा फिर. सो ये जो रेजिंग ऑफ आउटर एज है दैट इज कॉल्ड द सुपर एलिवेशन. ठीक है, व्हेन अ व्हीकल passes from a straight path to a curved one, so then there will be two types of forces. One will be the weight of the body, and second one will be the centrifugal force, and the resultant of these two will be in this direction. So अगर आप आउटर एज को रेज नहीं करते ना, सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं करते इस रिजल्टेंट को, तो व्हीकल या बॉडी जो है उस वो क्या होगा, वो पुश होगा ना ट्रैक से, मीन ट्रैक से उस साइड पे जाएगा, फिर वो एक्सीडेंट काज हो सकता है. तो हम क्या करते हैं कि आउटर एज को रेस करते हैं just to make the surface of the road perpendicular into the resultant of these two forces. तो फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा ना, तो बॉडी जो है इट विल बी नॉट फोर्स्ड. So see, if you are moving from a straight line into a curve, to at this point you will have to provide some super elevation. तो स्ट्रेट लाइन में जीरो सुपर एलिवेशन है और यहाँ पे आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है. सो इट मींस दैट यू आर मूविंग फ्रॉम जीरो सुपर एलिवेशन टू सम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन. ठीक है, सो अगेन यू विल फील सम डिस्कंफर्टेबिलिटी. सो टू अचीव दिस सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली you will have to provide a transition करो. ठीक है, तो ट्रांजिशन करो में रेडियस जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, कर्वेचर ग्रेजुअली अचीव होता है, तो सुपर एलिवेशन भी आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करना होगा. ठीक है, सो देखें अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहां पे आपने ट्रांजिशन करो डिजाइन किया, तो जब ट्रांजिशन करो खत्म होगा तो आपने वो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन और रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अचीव किया होगा. सो देन यू विल नॉट फील एनी डिस्कंफर्टेबिलिटी. और अगर टेंजेंट से डायरेक्टली आप सर्कुलर कर्व पे चले जाएं, सो फिर ये चीजें जो है एब्रप्टली अचीव होंगे, एंड देन द पैसेंजर और द व्हीकल विल फील द डिस्कंफर्टेबिलिटी. ठीक है, तो ये नीड है या ये ऑब्जेक्टिव है फॉर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांजिशन करो.
ठीक है, जस्ट टू accomplish the gradual transition from the tangent to the circular curve to obtain the gradual increase in the curvature, to obtain the gradual increase in the centrifugal force, to obtain the gradual increase in the super elevation, and also to enable the driver to turn the steering gradually and comfortably. मीन अगर डायरेक्टली आप एक स्ट्रेट लाइन से कर्वेचर पे जा रहे हैं ना, तो आपने स्टीयरिंग को प्रॉपरली और ज्यादा रोटेट करना होगा। और अगर आप स्लोली और ग्रेजुअली टेंजेंट से करो की तरफ जा रहे हैं, तो आपने स्टीयरिंग को ग्रेजुअली, कंफर्टेबली और सेफली रोटेट करना होगा। सो ड्राइवर जो है, द ड्राइवर विल फील कंफर्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी ट्रांजिशन करोस के। क्लियर हो गए ये? यस सर। अच्छा, कुछ कंडीशंस है which must be fulfilled by the transition करो। देखें, this is the first tangent। यहां पे आपने एक सर्कुलर करो डिजाइन करना है, ये सेकंड टेंजेंट है। नाउ in between the tangent and circular curve, here we will have to design a transition curve, and in between the curve and tangent, here we will have to design a transition curve। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि स्लोली इस पॉइंट पे रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट से आर पे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। यहां पे जो है रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज होगा आर से इनफाइनाइट तक। सो नाउ रिमेंबर, ये कुछ कंडीशन जो है ये बाद में डेरिवेशन के लिए या डिजाइनिंग में यूज होंगे, तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। सो T1 पॉइंट जो है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन करो, ए पॉइंट जो है दैट इज द एंड ऑफ ट्रांजिशन करो एंड स्टार्ट ऑफ सर्कुलर करो। सिमिलरली बी जो है दैट इज द एंड ऑफ सर्कुलर करो एंड स्टार्ट ऑफ ट्रांजिशन करो। T2 जो है दैट इज द एंड ऑफ ट्रांजिशन करो। नाउ T1 पॉइंट पे जो फर्स्ट टेंजेंट लाइन है दैट विल बी टेंजेंट टू द ट्रांजिशन करो, एंड सिमिलरली ट्रांजिशन करो will meet the circular करो tangentially। मीन जहां पे ट्रांजिशन करो और सर्कुलर करो मीट हो रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन करो सर्कुलर करो को टेंजेंट होगा। सिमिलरली जहां पे सर्कुलर करो खत्म हो रहा है और ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे भी ट्रांजिशन करो सर्कुलर को टेंजेंट होगा, और एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन करो इट विल बी टेंजेंट टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रांजिशन करो एक्चुअली क्या होता है, दैट इज जस्ट अ सेक्शन ऑफ पैराबोला। मोस्टली पैराबोला जो है ना एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ट्रांजिशन करो जो है दैट इज अ सेक्शन या दैट इज अ पोर्शन ऑफ पैराबोला। जिस तरह हमारे पास ये करो क्या होता है, दैट इज अ सेक्शन और पोर्शन ऑफ सर्कल। सो सिमिलरली ट्रांजिशन करो जो दैट इज अ सेक्शन और पोर्शन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, सो दो कंडीशंस ये हो गए कि द ट्रांजिशन करो शुड मीट द स्ट्रेट लाइन tangentially, and also the transition curve should meet the circular curve tangentially। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांजिशन करो का या ट्रांजिशन करो जहां पे सर्कुलर करो के साथ मीट हो रहा है ना, इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। सो एट द जंक्शन पॉइंट द रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन करो शुड बी इक्वल टू the radius of the circular करो। ठीक है, तीन कंडीशंस हो गए। नेक्स्ट कंडीशन जो है, देखें ये जो रेडियस है ना, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। सो जब रेडियस डिक्रीज होता है तो कर्वेचर जो है या शार्पनेस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, देखें ये T1 पॉइंट पे सुपर एलिवेशन क्या होगा, 0।
और जंक्शन पॉइंट पे सुपर एलिवेशन क्या होगा, उसकी सम वैल्यू होगी। मीन एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन करो सुपर एलिवेशन विल बी 0 and at the end of the transition karo we will have some value of the super elevation. Similarly at the start of the transition karo we will have 0 curvature and at the end of the transition karo we will have some curvature which is equal to the curvature of the circular karo. So transition karo का radius जो है वो gradually change हो रहा है ना, तो कर्वेचर भी ग्रेजुअली चेंज होगा और सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली चेंज होगा। सो रेट ऑफ चेंज इन कर्वेचर जो है दैट विल बी सेम ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। समझ आ रहे हैं ना, ट्रांजिशन करो के स्टार्ट में सुपर एलिवेशन भी 0 है, कर्वेचर भी 0 है। एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन करो सुपर एलिवेशन की भी सम वैल्यू होगी, कर्वेचर की भी सम वैल्यू होगी। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर जो है दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन। मीन जितने रेट पे कर्वेचर इंक्रीज हो रहे हैं उतने रेट पे सुपर एलिवेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा ये फोर्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन ये है कि ट्रांजिशन करो का लेंथ इतना होना चाहिए कि आपके पास जंक्शन पॉइंट पे रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अचीव हो जाए। बिकॉज अगर आप यहां पे एक सर्कुलर करो डिजाइन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए एक कांस्टेंट सुपर एलिवेशन होना चाहिए जिसको आपने ग्रेजुअली अचीव करना है। सो एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन करो या एट द जंक्शन पॉइंट आपके पास वो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन होना चाहिए। सो यू विल हैव टू सेलेक्ट सच अ लेंथ फॉर द ट्रांजिशन करो कि अगर आप इतना रेट ऑफ सुपर एलिवेशन अप्लाई कर रहे हैं, सो एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन करो आपके पास इतना सुपर एलिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस हैं कि ट्रांजिशन करो शुड मीट द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली and the transition curve should meet the circular curve tangentially. The radius at the junction point should be same as that of the circular curve, and the rate of increase of curvature should be same the rate of the super elevation, and the length of the transition curve will be such that the required super elevation achieved at the जंक्शन पॉइंट कि जंक्शन पॉइंट पे आपके पास वो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अचीव हो जाए, उतना लेंथ आपने ट्रांजिशन करो का रखना होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। और जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि हमारे पास जो करो होते हैं वो सर्कल का एक पोर्शन होता है या सर्कल का एक सेक्शन होता है, तो सिमिलरली पैराबोला ट्रांजिशन करो जो है ये मोस्टली पैराबोलिक का एक सेक्शन होता है। ठीक है, जब हम इसकी सेटिंग आउट के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे ना कि इस करो को हम किस तरह सेट आउट करेंगे, तो उसकी हर एक पॉइंट के लिए हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशंस डिराइव करेंगे। सो जो इक्वेशंस होते हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग पैराबोला, वो पैराबोलिक का इक्वेशन होता है या क्लोथॉइडल शेप का एक इक्वेशन आ जाता है हमारे पास। सो वी कैन से दैट ट्रांजिशन करो जो है दैट इज अ सेक्शन और पोर्शन ऑफ पैराबोला जनरली मोस्टली पर रेलवे और ये लेमनिसिकेट, ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन फॉर द ड्यूरिंग द सेटिंग आउट ऑफ द ट्रांजिशन करो कि ट्रांजिशन करो को आप किस तरह सेट आउट करेंगे, बिकॉज उसका जो रेडियस है वो तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, तो फिर उसकी डिफरेंट पॉइंट्स को आप किस तरह सिट आउट करेंगे, किस तरह रेंज आउट करेंगे, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक जनरल इक्वेशंस हम डिफाइन करते हैं फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन करो। तो कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशंस होते हैं समटाइम वो पैराबोलिक की इक्वेशंस होते हैं,
So then we can say that transition curve जो है that is a section or portion of the parabola. ठीक है, ओनली मैथमेटिकल डिफरेंस है उनके पास, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है. हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज जस्ट टू अचीव द रिक्वायर्ड रेडियस ग्रेजुअली, either to decrease from infinite to the required value or to increase from required value to infinite. Then you will achieve the centrifugal acceleration, the super elevation and the okay, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है. Here you can see यहाँ पे देखिए ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है रेल का, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद अगर आप देखें एक सर्कुलर कर्व स्टार्ट, ठीक है, सर्कुलर कर्व है यहाँ पे. तो इन बिटवीन दिस स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व यहाँ पे एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया गया है जिसका रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रेडियस वेरिएबल है. तो अगर रेडियस वेरिएबल है तो बाकी जो पैरामीटर है वो भी ग्रेजुअली अचीव होंगे. ठीक है, क्लियर हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन करो का. जी Yes, sir. Yes, sir. okay. Now before going into the designing equations of the transition curve, first we have some parameters which need to be discussed. ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं या जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो आपने पहले कैलकुलेट करने होते हैं फॉर द बिफोर द डिजाइनिंग ऑफ द ट्रांजिशन करो. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं दैट इज द सुपर एलिवेशन इन एनी टाइप ऑफ द सर्कुलर कर्व्स. ठीक है, तो पहले इसको अंडरस्टैंड कर ले कि ये सुपर एलिवेशन क्या है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं ना तो बॉडी के ऊपर जस्ट वेट उसका एग्जर्ट होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा ना. तो अगर एक स्ट्रेट रोड पे आप जा रहे हैं तो एक वेट है और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो गाड़ी जो होती है वो स्टेबल होते हैं. ठीक है, अब सपोज अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, मीन एक स्ट्रेट से आप कर्व पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एग्जर्ट होंगे. अब एक उसका वेट होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा. ठीक है, बिकॉज बॉडी क्या है वो रोटेट हो रही है ना, एक सर्कुलर पाथ में वो जा रही है अभी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होगा बॉडी के ऊपर अवे फ्रॉम द सेंटर. तो अब उसके ऊपर दो फोर्सेस, तो उसका रेडियस जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा. सो देखिए रिजल्टेंट की वजह से जो गाड़ी है वो पुश हो सकती है. ठीक है, वो व्हीकल को पुश ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम द रोड या रेल को पुश आउट कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रैक. ट्रैक से आप आउट हो सकते हैं, आप स्लिप हो सकते हैं, यू कैन फील द डिस्कंफर्टेबिलिटी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रोड का जो आउटर एज होता है ना उसको रेस कर देते हैं या इनर कर देते हैं. ठीक है, इनर एज को नीचे कर देते हैं या आउटर एज को रेस कर देते हैं. तो इसके ऊपर अगर गाड़ी मूव हो रही है डाउनवर्ड होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड. तो गाड़ी जो है वो स्टेबल होगी फिर. सो ये रेजिंग है दैट इज कॉल्ड द सुपर एलिवेशन. ठीक है, मीन रोड का जो आउटर एज हम रेस करते हैं ना इसको सुपर एलिवेशन कहते हैं. अगर प्रैक्टिकली आप लोग कहीं पे निकल जाए रोड पे तो आप देखिए जहां पे कर्व होता है तो उसका आउटर एज होता है वो रेस किया गया होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सुपर एलिवेशन. नाउ देखें अगर आपके पास जो है ये रोड का एक विड्थ है सपोज
दैट इज द width ऑफ द रोड। आउटर एज को आपने इतना रेस किया हुआ है, विच वी कॉल द सुपर एलिवेशन या विच वी कॉल द कैंट, इसको कैंट भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर रोड का सरफेस ये होगा, सरफेस इस तरह होगा ना, फिर दैट इज द width ऑफ द रोड, और एज जो है दैट इज द सुपर एलिवेशन। गाड़ी इस तरह होगी फिर रोड के ऊपर, वेट जो है दैट विल बी एक्सर्टेड एग्जैक्टली डाउनवर्ड, सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस तरह एक्सर्ट होगा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा फिर वेट का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो सरफेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो गाड़ी जो है इट विल नॉट फील द डिस्कंफर्टेबिलिटी। सो द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दैट इज टू पुश द व्हीकल फ्रॉम द रोड। So to counterattack the action, the outer edge of the road will be raised, okay, या the inner edge जो होता है उसको हम depressed कर देते हैं। ठीक है, सो जो outer edge जितना आप रेस कर रहे हैं that is called the super elevation या that is called the cane। ठीक है, और उसको आपने कितना रेस करना है, remember that is depend on the speed of the vehicle and that is depend on the radius of the curve। बिकॉज मोस्टली हमने क्या करना है, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने बैलेंस करना है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड द रेडियस। तो अगर करो जो है ज्यादा शार्प है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसके ऊपर फिर वेलोसिटी। ठीक है, मीन इन दो पैरामीटर जो है सुपर एलिवेशन डिपेंड होता है। ठीक है, तो एक करो पे अगर आप मूव हो रहे हैं, एक करो पे अगर एक व्हीकल जा रही हैं, तो वहां पे आप लोगों ने देखे हुए अगर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, कि हर एक करो के लिए अपना एक स्पेसिफिक स्पीड होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुपर एलिवेशन विच इज प्रोवाइडेड इन दैट करो, मीन हर करो पे अपना एक स्टैंडर्ड अपना एक स्टैंडर्ड वेलोसिटी होगी अकॉर्डिंग टू द सुपर एलिवेशन। ठीक है, अब देखिए ये भी हो सकता है कि आर बॉडी की वेट डिफरेंट हो सकता है ना, तो अगर वेट डिफरेंट है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफरेंट होगा, लेकिन रेशो जो है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेशो ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन रेज हो जाते हैं ना कि सपोज अगर एक करो पे डिफरेंट वेट के व्हीकल जो है वो मूव हो रहे हैं, अगर डिफरेंट वेट के व्हीकल मूव हो रहे हैं तो उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द वेट जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक करो पे जा रहे होते हैं तो उसका अपना एक स्पेसिफिक सुपर एलिवेशन होगा, उसकी अपनी एक कांस्टेंट रेडियस होगी, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एक वेलोसिटी होती है कि आपने इतनी वेलोसिटी पे जाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जिस तरह हमने डिस्कस की कि सपोज ये विड्थ ऑफ द रोड है, आउटर एज को सपोज आप रेस कर लें, सो दैट विल बी कॉल्ड द सुपर एलिवेशन। ठीक है, और सरफेस ऑफ द रोड ये हो जाएगा फिर। अब इसके ऊपर अगर एक बॉडी मूव हो रही है, एक व्हीकल मूव हो रहा है, तो उसका वेट जो है इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, that will be weight of the vehicle, and the centrifugal force will be in this direction। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और इनका जो रिजल्टेंट है that will be perpendicular to the surface। ये रिजल्टेंट इस तरह आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अगर आउटर एज को आप रेस कर लें तो सरफेस क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा ना। सो सपोज दैट इज द एंगल ऑफ दैट इंक्लाइनेशन, ये जो थीटा है ना दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे और ये दोनों थीटा सेम होंगे।